الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله. لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي هو المصطفى والمجتبى وهو أهل التقوى والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال عز وجل في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد. اور دنیا میں جس قدر لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جس قدر لوگ ہیں احترام کے قابل، ہم سب ہی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. گرامی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج ربیع الاول کی اس عظیم مجلس کے اندر برادر مکرم مولانا زبیر احمد فانی صاحب کی دعوت پر حاضری کا موقع ملا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہ بیٹھنا، حضور کی سیرت کو سننا سنانا اپنے دربار کے اندر قبول اور منظور فرمائے. اور جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں اسی طرح اللہ کریم ہمیں کل حشر کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کے نیچے جمع فرمائے. اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو وجود دیا اور جناب آدم علیہ السلام سے انسان کا وجود شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دینے کے بعد
انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انسانیت کا آغاز بھی حضرت آدم سے ہوتا ہے اور نبوت کا آغاز بھی جناب آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ پھر وہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس تسلسل کی کڑی تھے، یہ چلتے رہے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر اللہ رب ذوالجلال نے کچھ وقت کے لیے نبوت کے سلسلے کو روکا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک بڑا لمبا عرصہ گزر گیا، 571 سال کا عرصہ بیت چکا۔ اللہ کریم نے نبوت کو روکا ہوا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ رہا جو آ کر انسانیت کو گمراہی سے نکالے، ہدایت میں لائے۔ کوئی نبی نہیں آ رہا جو نافرمانوں کو اللہ سے ملائے۔ کوئی نبی نہیں آ رہا جو انسانیت کا ناطہ مخلوق سے کاٹ کر خالق سے ملائے۔ نبوت کو اللہ کریم نے روک دیا۔ 5.25 صدیاں گزر چکی، انسانیت تباہی اور بربادی کے اس دانے پہ پہنچ چکی ہے کہ انسان کو انسان کہتے ہوئے شرم آتا ہے۔ اتنی نافرمانیاں، اتنی بے ایمانیاں، اتنی نافرمانیاں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کے اندر وہ کون سی برائی تھی، انسانیت کے اندر وہ کون سا ظلم و ستم تھا جو موجود نہیں تھا؟ دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ شاید اب انسان واپس پلٹنے کی سکت نہیں رکھتا، شاید اب تباہی کی آخری کڑی ہے۔ اور خود قرآن کریم نے عجیب نقشہ کھینچا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگو، اے انسانیت، تم تباہی اور بربادی کے آخری کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ تمہارے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تمہارے اوپر حکمران بننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تمہاری ایسی حالت ہو چکی تھی کہ ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانیوں کی ان گہرائیوں میں اپنے آپ کو گرا دیا، نافرمانیوں کی تحت سرا میں پہنچنے والے لوگوں کو انسانیت کے لیول پہ لانا مشکل ہو چکا تھا، لیکن خالق کائنات نے انسانیت کی اس حالت پہ ترس یوں کھایا کہ ہم ایسی شخصیت کو بھیج دیں گے، ایسے لیڈر کو بھیج دیں گے، ایسا قائد آئے گا جو انسانیت کو صرف تحت سرا کی پستیوں سے اٹھا کر کے انسانیت پہ نہیں لائے گا، بلکہ وہ لیڈر، وہ شخصیت، وہ قائد انسانوں کو تحت سرا کی پستیوں سے اٹھا کر کے عہد سریہ کے کمال تک پہنچا چھوڑے گا۔ خالق کائنات ان لوگوں کا تذکرہ جن کا آج نام لینا کوئی برداشت نہیں کرتا، خالق ان لوگوں کا تذکرہ کہ جن کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک وقت آئے گا یہی لوگ ہوں گے، یہی وہ لوگ تھے جو بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا پیاسا ہے، لیکن میرے محبوب آ کر کے جب ان کو تحت سرا کی پستیوں سے اٹھا کر کے عہد سریہ کی بلندی پہ لے جاتے ہیں، خالق کائنات قرآن اتارتے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے مصطفیٰ نے انسان کو اس حالت سے اٹھایا کہ جن کا نام لینا گوارا نہیں تھا، آج میں رب دنیا میں ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ میرے مصطفیٰ کی تربیت تھی کہ جن پہ حکمرانی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، میرے مصطفیٰ نے 23 سال محنت کر کے ان کو ایسا نمونہ بنا دیا کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہہ دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری یہ 23 سال کی محنت
मैंने ऐसे शागिर्द तैयार किए, मैंने अबू बकर जैसा इमाम तैयार किया, मैंने उमर फारूक जैसा हुक्मरान तैयार किया, मैंने उस्मान गनी जैसा सखी तैयार किया, मैंने अली अल मुर्तजा जैसा बहादुर तैयार किया, मैंने अमीर मुआविया जैसा सियासतदान तैयार किया, मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद जैसा मुहद्दिस तैयार किया, मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसा मुफस्सिर तैयार किया। ओ लोगों, दुनिया के लोगों, मैंने 1,24,000 अपने सहाबा इस अंदाज में तैयार कर दिए कि खालिक कायनात आसमान से मेरे सहाबा की रजा का ऐलान करते हैं। उस माहौल में मेरे हुजूर तशरीफ लाए और कुर्बान जाए खालिक कायनात पर। खालिक कायनात ने इतनी नेमतें की, इंसान अपने जिस्म को देखे, हर जिस्म का उज़्व अलग नेमत है, पकड़ने की नेमत, देखने की नेमत, सुनने की नेमत, हर चीज इंसान के जिस्म में। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने जिस्म में देखो, तुम्हें खालिक कायनात की बड़ाई नजर आएगी। सारी नेमतें की, वालिदैन के लिए औलाद नेमत है, औलाद के लिए वालिदैन नेमत है, भाई बहन एक दूसरे के लिए नेमत, माशरे में पड़ोसी पड़ोसी के लिए नेमत, ये सारी की सारी नेमतें की। मैंने आसमान बनाया, मैंने जमीन बनाई, मैंने कुरान उतारा, ये सारी कुछ चीजें जो तुम्हें नजर आ रही हैं ये मैंने खालिक ने किया है। लेकिन कुर्बान जाए उस खालिक पर, किसी चीज पर भी एहसान नहीं जतलाया कि मैंने तुम्हें वालिदैन दिए, मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैंने तुम्हें औलाद दी, मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी नेमतें दी। खालिक ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। लेकिन कुर्बान जाए उस खालिक पर, जब हुजूर की बारी आई, फरमाया कि दुनिया को लोगों, सारी नेमतें मैंने दे दी। वइन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, सारी नेमतें शुमार करो, गिनना चाहो गिन नहीं सकते, लेकिन मैं खालिक ने देकर एहसान नहीं जतलाया। आज मैं अपनी सबसे बड़ी नेमत देने लगा हूं। ख्याल करना, ध्यान करना कि आज मैं खालिक नेमतों की इंतहा करने लगा हूं। रब्बा क्या नेमत देने लगा है? फरमाया कि नेमत भी दूंगा और नेमत पे एहसान भी जतलाऊंगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बासा फीहिम रसूला, फरमाया कि मैंने अपना रसूल तुम्हें दिया, इसकी कदर करना, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत देकर मैंने एहसान जतलाया। ओ दुनिया के लोगों, बहुत बड़ी चीज तुम्हें अता करूं, इसका ख्याल करना। हुजूर की सूरत में, उसी हुजूर के साथ रबीउल अव्वल के महीने की निस्बत है। और जिस माहौल में हुजूर तशरीफ लाए, कुछ मैंने जिक्र कर दिया, हुजूर जिस माहौल में तशरीफ लाए, बेटियों को जिंदा कब्र में दफन किया जा रहा है, बेटी की कोई इज्जत नहीं, बीवी की कोई इज्जत नहीं, माँ की कोई इज्जत नहीं, औरत को लोटी समझा जा रहा है, गुलामों के ऊपर हुक्मरानी की जा रही है, कोई वक़्त नहीं इंसान की, इंसान के साथ जानवरों जैसा मामला किया जा रहा है। खालिक के कायनात ने हुजूर को भेजा, हुजूर मजलिस में तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। एक शख्स आया, कहने लगा, अल्लाह के रसूल, सुना है आप कहते हैं कि मैं वो दीन लेकर आया हूं जो सारों को माफ कर देता है, मैं वो शरीयत लेकर आया हूं जो इंसान को रब से मिला देते हैं, अल्लाह सारे साबिक़ा गुनाहों से दरगुजर कर देते हैं। ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया, शायद कि मेरी बख्शिश ना हो सके। सहाबा किराम हैरान, हुजूर हैरान बैठे। फरमाया कि वो कहने वाले, क्या तूने चोरी की है? कहा अल्लाह के हबीब, चोरी से भी बड़ा गुनाह किया। कहा ज़िना किया? फरमाया इससे भी बड़ा गुनाह किया। कहा ढाका डाला? फरमाया इससे भी बड़ा गुनाह किया। मुझे लगता है मेरे हबीब आपके दीन में इसकी बख्शिश नहीं। हुजूर ने फरमाया, अपनी मुंह जुबान हिलाओ, खालिक के कायनात माफी का ऐलान करेगा। सहाबा किराम फरमाते हैं, वो शख्स अपना तज़किरा करने लगा। फरमाया, अल्लाह के हबीब, मैं सफर पे जा रहा था, सफर में जाते वक्त मेरी बीवी हामिला थी, उसके पेट में कुछ था, मैंने अपनी बीवी को खर्चा दिया। मैंने कहा अगर मेरे सफर के दौरान मेरे घर बच्चे की विलादत हो जाए, अगर बच्चा पैदा हो जाए तो ये खर्चा उस बच्चे की तरबियत में लगा देना, और अगर बच्ची पैदा हो जाए तो उसको एक दिन भी जीने की इजाजत नहीं, उसको कब्र में उतार देना। फरमाया हुजूर मैं सफर पे चला गया, 7 साल का जमाना गुजर गया, मैं वापस आया, मैंने घर में दस्तक दी, एक बच्ची भागती हुई आई, उसने दरवाजा खोला,
फरमाया अल्लाह के रसूल, जब दरवाजा खोला मैंने देखा है खूबसूरत बच्ची है, हंसती मुस्कुरा रही है। मैंने कहा बच्ची तू किसकी है? उसने कहा मैं इस घर के मालिक की बच्ची हूं। कहा घर का मालिक तो मैं हूं, मेरी कोई बच्ची नहीं। बीवी से पूछा, बीवी ने कहा वही जो 7 साल पहले आप रुखसत हो रहे थे, अल्लाह ने बच्ची अता की है। कहा कि मैंने बताया नहीं कि इसको जिंदा रहने का हक हासिल नहीं, इसको जिंदा दफन कर दिया जाता। मां ने बहुत कहा, मां होती है। कहा नहीं, इसको जीने का कोई हक हासिल नहीं। लोग क्या कहेंगे कि सरदार की बेटी है और कल अगर इसकी शादी किसी कमतर कबीले के शख्स से होगी, मेरे लिए बेइज्जती का मामला है। फरमाया अल्लाह के नबी, मैंने अपनी को बेटी को लिया, घर से निकल गया और बेटी मुसलसल पूछती है अब्बा जान मुझे कहां लेकर जा रहे हो? धूप है और आप वीराने की तरफ जा रहे हो, अब्बा जान धूप में आपको पसीना आ रहा है, कहां पर जा रहे हो? फरमाया अल्लाह के अभी मुझे फिर भी तरस न आया, मैं अपनी वो 7 साल बेटी को लेकर जा रहा हूं। फरमाया जंगल आ गया, अल्लाह के हबीब बियाबाने में बेटी कह रही थी अब्बा जान इस बियाबाने में कभी कोई आया नहीं, आप कहां लेकर जा रहे हो? फरमाया अल्लाह के हबीब मुझे फिर भी तरस न आया, मैं उस बेटी को लेकर वीराने में पहुंचा, मैंने बेटी को बिठाकर मैं गला खोदने लगा। अल्लाह के हबीब वो बच्ची मट्टी साफ कर रही थी। फरमाया अल्लाह के हबीब मुझे फिर भी तरस न आया और मेरी दाढ़ी के ऊपर जो मट्टी लग रही, जो मेरे बालों के ऊपर मट्टी लग रही, वो मेरी बेटी साफ कर रही थी, मेरा पसीना साफ कर रही है और मुसलसल मुझसे पूछती जा रही है कहां लेकर जा रहे हो? अल्लाह के हबीब मुझे तरस न आया। एक वक्त आया, उस बेटी को मैंने उस गड्ढे में उतार दिया, उसको मैंने घुटनों तक जमीन में दबा दिया। वो मुझसे जिंदगी मांग रही थी कि मैं जिंदगी में कभी आपसे रिज़्क नहीं मांगूंगी, मैं अपनी जिंदगी किसी जगह गुजार दूंगी, लेकिन मुझसे मेरे जीने का हक न छीना जाए। फरमाया अल्लाह के हबीब मुझे फिर भी तरस न आया, करते करते मैंने सर तक उस बट्टी को जमीन में दफन कर दिया। अल्लाह के हबीब उसकी चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी, मुझे तरस न आया। मैंने उसके ऊपर पत्थर रखे कि इसकी चीखों पुकार की आवाज ना आए। मैं पलट आया, अल्लाह के हबीब मुझे तरस न आया कि इस्लाम के दामन में मेरे लिए कोई रहम का मामला है, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? सहाबा किराम फरमाते सारा मजमा ज़ारो कतार रो रहे, अल्लाह के हबीब रो रहे, ये कैसा मामला आ गया? अल्लाह ने कुरान उतार दिया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे हबीब मायूस होने की जरूरत नहीं, खालिक के कायनात के पास रहमत के वो खजाने हैं। कोई शख्स अपने ऊपर जुल्म व सितम करके आ जाए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मुझ रब की रहमत से ना उम्मीद ना हो। मैंने इस शख्स के गुनाह को भी माफ फरमा दिया। वो रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर हमें मिले। सारी बातें एक तरफ, हम मोहब्बत का दावा भी करते हैं, हमें हुजूर से मोहब्बत भी है, और जिसको हुजूर से मोहब्बत नहीं उसका ईमान कामिल नहीं। फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया कि ईमान वालों का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता, फरमाया कि जब तक वो अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और दुनिया के हर इंसान से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न करे। हमें मोहब्बत है, लेकिन देखना ही है कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत करनी है मेरी सुन्नतों को लाजम पकड़े, जो चाहता है कि आखिरत में मेरे साथ रहे। सहाबी रसूल हैं, हुजूर के पास बैठे हुए ज़ारो कतार रो रहे। हज़रत सुबान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ने पूछा मेरे सहाबी क्यों रो रहे हो? फरमाया अल्लाह के रसूल ये दुनिया का मामला है, जब दिल चाहता है आपके दीदार करने का, आपकी मजलिस में आ जाता हूं, लेकिन एक बात सोचकर मुझे गम आ जाता है, मैं परेशान हो जाता हूं कि आप रहमतुल लिल आलमीन, आप इमामुल अंबिया, आपका मर्तबा और मकाम जन्नत में बहुत बुलंद होगा। मैं अदना सा सहाबी रसूल हूं, मेरा जन्नत में मर्तबा और मकाम कम होगा। अल्लाह के हबीब जन्नत में अगर आपके दीदार को तरसा तो क्या करूंगा? हुजूर ने फरमाया आसान सा उसूल बता दिया। फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करेगा, और जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करके उनके ऊपर अमल करेगा, काना माई फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ है। मेरे सहाबी जन्नत में मेरे साथ होना चाहते हो, मेरी सुन्नतों को लाजिम पकड़ो, अल्लाह करीम कल जन्नत में मेरे साथ हशर फरमाए। इसलिए
हम अल्लाह के हुजूर के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा अमली तकाजा क्या है? इन मजालिस का मकसद ये होता है कि हम अमल के ऊपर आ जाएं। हमारा हर मामला, जिंदगी का हर मामला, शादी हो, गमी हो, मामलात हो, माशरत हो, सारी की सारी चीजें अल्लाह के हबीब के तरीके के मुताबिक आ जाए, इस चीज का मुतालबा है। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। फरमाया कि अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, मेरे हबीब की इत्तिबा करो, अल्लाह मिल जाएगा। तो इसलिए हर शख्स अपने गिरबान में जानते कि मैं अल्लाह के हबीब का उम्मती हूं। बड़े बड़े अंबिया ने दुआएं मांगी। हज़रत मूसा कलीम की बात अर्ज करता हूं। हज़रत मूसा कलीम बड़े जलाली पैगंबर थे अल्लाह के, और बड़े जलाल में बातें किया करते थे। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब नाजिल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किताब में पढ़ा कि आखिर में एक उम्मत आएगी, जो उम्मत सबसे आखिर में आएगी, सबसे पहले जन्नत में चली जाएगी। मूसा कलीम अपने जलाल में अल्लाह से मुखातिब हुए। फरमाया कि अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे। फरमाया कि मूसा नहीं, वो मैंने अपने हबीब के लिए रखी है। फिर वही नाजिल होती है। हज़रत मूसा पढ़ते हैं अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम, कि वो ऐसी उम्मत होगी कि अल्लाह उनके नबी पर उतरने वाली किताब उनके सीने में महफूज कर देंगे। हज़रत मूसा कलीम फिर जलाल में आए कि अल्लाह करीम वो किताब मुझे अता कर दे। फरमाया कि मूसा कलीम वो किताब भी मेरे हबीब को मिलनी, आपको नहीं मिल सकती। हज़रत मूसा कलीम है जलाल में आखिरी इल्तिजा की, आखिरी दरखास्त की। फरमाया कि अल्लाह मुझे नबूवत नहीं चाहिए, उस नबी की उम्मत में पैदा कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ये मेरा तरीका नहीं, मैं जिसको एक मरतबा नबूवत दे देता हूं वापस नहीं लेता। ये वो उम्मत है जिसके लिए अंबियाए किराम ने दुआएं मांगी, अल्लाह ने हमें बिन मांगे इस उम्मत में भेज दिया। कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन अपने अमल को हम देखें कि हमारी जिंदगी के अंदर सुन्नतें कितनी हैं। अगर जिंदगी के अंदर सुन्नतें हैं, कल अल्लाह करीम हमें आखिरत में हुजूर की मायत नसीब फरमाएंगे। और अगर जिंदगी हुजूर के तरीकों के खिलाफ गुजर गई तो फिर आखिरत में भी शर्मिंदगी और दुनिया के अंदर भी शर्मिंदगी है। हदीस के अंदर आता है, फरमाया कि जो शख्स सुन्नतों के ऊपर अमल करता है, अल्लाह करीम 4 इनाम अता फरमाते हैं। सबसे पहली चीज अल महब्बतु फी कुलूबिल बरारा। फरमाया कि अल्लाह सुन्नत पे अमल करने वाले शख्स की मोहब्बत दुनिया के नेक लोगों के अंदर डाल देते हैं। नेक लोगों के सीनों के अंदर उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। आज हम देखते हैं कोई बड़ा आलिम हो, बड़ा मुफ्ती हो, बड़ा वली हो, बड़ा बुजुर्ग हो, उसके चेहरे को देखने के लिए हम तरसते हैं कि जिंदगी में कभी मौका मिल जाए, फलां बुजुर्ग से मुलाकात हो जाए, फलां आलिम से मुलाकात हो जाए, उसके चेहरे को देख मैं उससे 2-4 बातें कर लूं। वजह यही है कि उन्होंने दीन के ऊपर अपने आप को लगाया, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी। और दूसरा इनाम अल्लाह अता फरमाते हैं, फरमाया वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, कि सुन्नत के ऊपर चलने वाले शख्स की अल्लाह ताला हैबत, रोब और दबदबा नाफरमानों के दिलों में डाल देते। नाफरमानों के दिलों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सिफत है कि वह नुसिरतु बिर्रुब, कि अल्लाह के हबीब की तरफ जो शख्स चल के आता, अल्लाह के हबीब का दुश्मन, तो फरमाया कि 1 महीने की मुसाफत से जब चलता था तो उसके दिल के अंदर अल्लाह के हबीब का रोब और दबदबा आ जाता था। तो अल्लाह ने वही सिफत हुजूर के मानने वाले को अता की है कि अगर सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे, वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, कि हम नाफरमानों के दिलों में इनकी हैबत डाल देंगे। आज ईमान से बताओ 57-58 इस्लामी मुल्क हैं, किसी इस्लामी मुल्क की कोई हैबत है काफिरों के सामने? 57-58 ममालिक सैलाब के अंदर तिनके की मानत बह जाते हैं जब कोई एक काफिर मुल्क खड़ा हो जाता है। उसकी वजह यही है कि हमने जिंदगी में हुजूर के तरीकों को निकाला, हम गुलाम बन के, वो हमारे हुक्मरान बन गए। अगर हम हुजूर की सीरत को अपनाएं, आज भी हम हुक्मरान हो, वो हमारे गुलाम हो। तो दूसरी चीज फरमाया कि अल्लाह ताला नाफरमानों के दिलों में हैबत और रौब डाल देते हैं। दीन वाले का, सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले का, अल्लाह के वली का, आलिम का एक रौब और दबदबा होता है। और तीसरी चीज फरमाया कि वसाअत फिर रिज़्क़, सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले शख्स की रोजी के अंदर हम बरकतें अता फरमा देते, उसको हम रोजी ऐसी अता फरमाते हैं कि उसके वहम और गुमान में नहीं होता कि रोजी कहां से आ रही है। और हम देख रहे
जितना बड़ा अल्लाह का वली होगा, आलिम होगा, हम उसको देखते हैं, उसका खाना हमसे अच्छा, उसके कपड़े हमसे अच्छे, उसके पास गाड़ी हमसे अच्छी। वजह यही है कि उसने अपने आप को दीन के ऊपर साबित कदम रखा। अल्लाह ने दुनिया के खजाने उसके कदमों में ला के ढेर कर दिए। और चौथी चीज इरशाद फरमाया कि वसिक़तु फी दीन, फरमाया कि चौथी चीज हम ये अता फरमाएंगे, हम उस शख्स को दीन के ऊपर इस्तिकामत नसीब फरमाएंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फितनों का दौर होगा, फरमाया कि फितने इस अंदाज में आएंगे, फरमाया कि जिस अंदाज में आसमान से बारिश उतरती है, और फरमाया कि ऐसी हालत होगी युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को शख्स ईमान की हालत में होगा, शाम को काफिर होगा, रात को ईमान की हालत में सोएगा, सुबह काफिर होगा, फितनों की वजह से। आज फितनों का दौर है, हर तरफ फितने, इंसान को समझ नहीं आता हक क्या है, बातिल क्या है। इस हालत में अपने ईमान पर साबित कदम रहना चाहते हो, ईमान की हालत में दुनिया से जाना चाहते हो, सबसे आसान हाल यह है कि हम अल्लाह के हबीब की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला इस्तिकामत फिद दीन अता फरमाएगा, दीन के ऊपर खात्मा अता फरमाएगा। आखिरी बात जिक्र करता हूँ, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुआज़ को बुलाया, फरमाया कि मुआज़ आ जाओ, मैंने आपको यमन की तरफ रवाना करना। हज़रत मुआज़ ज़ारो कतार रो रहे हैं, परेशान है, कोई जवाब नहीं दे रहे। सहाबी रसूल अल्लाह के हबीब की एक बात पर लब्बैक करके खड़े हो जाते थे। हज़रत मुआज़ खामोश हैं। हुज़ूर फरमा रहे हैं मुआज़ आपको यमन भेज रहा हूं। हज़रत मुआज़ खामोश है, फरमाया कि आपको यमन भेज रहा हूं, खामोश है। हदीस के अंदर आते हैं 11 मरतबा अल्लाह के हबीब ने फरमाया मुआज़ यमन भेज रहा हूं। मुआज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के हबीब समझ गए मामला कोई है, फरमाया कि मुआज़ क्या मसला है। फरमाया कि अल्लाह के हबीब यमन जाना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मस्जिद नबी की नमाजें रह जाएंगी, सुबह शाम आपका दीदार रह जाएगा, मैं यमन चला जाऊंगा, या आपकी सुबह शाम की बरकत मुझसे रह जाएंगी। अल्लाह के हबीब इस वजह से 11 मरतबा खामोश रहा, लेकिन अल्लाह के हबीब का हुक्म था। हज़रत मुआज़ तैयार हुए और कुर्बान गए। अल्लाह के हबीब ने हज़रत मुआज़ को घोड़े पे सवार किया, और खुद अल्लाह के हबीब ने हज़रत मुआज़ के घोड़े की रस्सी को पकड़कर चलना शुरू किया कि आज मैं अपने सफीर को यमन भेज रहा हूं, वहां जाकर दीन की खिदमत करेगा, दीन का काम करेगा। कुर्बान जाए, सवारी पे हज़रत मुआज़ जा रहे हैं, अल्लाह के हबीब साथ चल रहे हैं, और साथ साथ हज़रत मुआज़ को दुआएं दे रहे हैं, और साथ साथ वाज़ और नसीहत कर रहे हैं कि मुआज़ यमन में जाकर ऐसे ऐसे दीन की खिदमत करना। जब मदीना की हुदूद खत्म हुई, अल्लाह के हबीब ने अलविदा किया, और वहां अल्लाह के हबीब ने एक अजीब बात इरशाद फरमाई। फरमाया कि मुआज़ उस वक्त तेरी क्या हालत होगी कि जब तू दोबारा यमन से वापस मदीना में आएगा, मैं दुनिया में नहीं होऊंगा। हज़रत मुआज़ के पांव के नीचे से जमीन निकल गई, ज़ारो कतार रोने लगे कि अल्लाह के हबीब पहले से बहुत ज्यादा गमगीन था कि मस्जिद नबी की नमाज चली गई, आपका सुबह शाम का दीदार चला गया। अब आपने जो बात इरशाद फरमाई कि मुआज़ यमन से वापस आएगा, मैं नहीं होऊंगा। हज़रत मुआज़ ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मुसलमानों गौर करो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मुआज़ परेशान होने की जरूरत नहीं, इन्ना औलन नासी बी अल मुत्तकून, फरमाया कि मेरे करीब सबसे ज्यादा वो शख्स होगा अल मुत्तकून, जो तकवा इख्तियार करेगा, दीन पे चलेगा, सुन्नत पे चलेगा। अगरचे मुआज़ तू यमन जा रहे, मैं मदीना में हूं, जिस्म के एतबार से मुआज़ तू मुझसे जुदा हो रहे, लेकिन हमारा मामला जिस्म के साथ नहीं, हमारा मामला ईमान के साथ है, सुन्नत वाली जिंदगी के साथ है। अगर यमन में रहकर मुआज़ सुन्नत पे अमल करते, इन्ना औलन नासी बी अल मुत्तकून, ये मुआज़ मेरे करीब है। और अगर कोई करीब मदीने में रहकर भी मेरी दीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो मेरे करीब नहीं। इसलिए हम हुजूर के साथ कुर्बत की बातें करते हैं, दावा करते हैं। इसलिए हम अपने दावे पे सोचें कि हमारी जिंदगी में कितना दीन है। माजरत के साथ नाराज होने की जरूरत नहीं। जिंदगी में हम ये ऐलान करते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सारे कहते हैं और सबको कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह। गुलामी रसूल में मौत आ जाए, इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन सवाल ये है गुलामी रसूल में जिंदगी कबूल क्यों नहीं। अगर गुलामी रसूल में मरना चाहता है तो गुलामी रसूल में जिंदगी क्यों नहीं गुजारना चाहता।
یہ فجر کی نماز سے غائب ہے، یہ عشاء کی نماز سے غائب ہے، 5 وقت مسجد سے اذان ہوتی ہے، یہ مسجد کا نام نہیں لیتا، یہ کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں، غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں۔ ایک شخص جا رہے تھے، اللہ کے ایک ولی، دیکھا کہ اذان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور داڑھی کے اوپر جو ہے نا اس طرح پھرا رہا ہے۔ اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے آگے سے جملہ کہا، اس نے کہا داڑھی مڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ اور یہ بات آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ استاد جی داڑھی نہ رکھتا، کسی تنگ بھی نہ کرتا، داڑھی نہ رکھسا جی غلط کام بھی نہ کرسا، یا داڑھی آ کے غلط کام کریں بھی اچھی گل تو نہیں، ایک غلط اور کام کر چھوڑے، داڑھی بھی نہیں رکھی، اضافہ ہو گئے نا غلط کاموں میں۔ اللہ کے ولی کو بات سمجھ میں آ گئی، جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تو کہہ رہے کہ میں داڑھی مڈا رہا ہوں، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، تجھے معلوم نہیں کہ تو آمنہ کے لال کا روزہ رسول میں دل تڑپا رہا ہے؟ تو کہہ رہے میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، اللہ کے حبیب کا دل دکھا رہا ہے۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ، عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھ سمیت ہر شخص اپنے 5-6 فٹ قد کو دیکھے کہ میں نے اپنے جسم کے اوپر اللہ کے حبیب کے دین کو کتنا نافذ کیا۔ ہر شخص جب اپنے گربان میں جانتے گا، ایک شخص کی زندگی ٹھیک ہو گئی تو دیے سے دیے جلتا ہے، اس کا گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن گھر میں بے نمازی سو رہے ہیں، گھر میں اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آخرت میں اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح قرب عطا نہیں فرماتے۔ دعائے کہ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کے طریقوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل اللہ کے حبیب کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور آخرت کے اندر ان کی شفاعت عطا فرمائے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی حضور کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب